हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम संजय है और इंडियन रिएक्शन में आपका स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप सब लोग ठीक होंगे। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले इसका सजेशन मुझे स्टीवन भाई ने दिया था। और कल मेरे लिए बहुत ख़ास डे रहा क्योंकि नॉर्थ ईस्ट होराइजन चैनल की तरफ से कल एक मैसेज था मेरे वीडियो के ऊपर, जो मैंने उनके वीडियो पे रिएक्शन दिया था। और जब मैंने वो मैसेज पढ़ा तो एक्चुअली मुझे ऐसा लगा कि मेरे लिए दिवाली गिफ्ट है, क्योंकि आप किसी भी फील्ड में हो और आपसे सीनियर होता है, उनकी तरफ से आपके लिए कोई अच्छे वर्ड्स होते हैं तो आपके लिए वो गिफ्ट से कम नहीं होता है। और मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि मैं आपका हर एक वीडियो देखता हूँ और मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो आज का वीडियो पे जाने से पहले आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे है और ये वीडियो भी नॉर्थ ईस्ट होराइजन चैनल का ही है। और इस वीडियो के बाद हम बहुत सारी बातें करेंगे इस टॉपिक के रिलेटेड, तो बने रहिए लास्ट तक। तो वीडियो पे जाने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस करें। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन पे भी है, वहाँ पे भी फॉलो करना ना भूलिए। तो पहले वीडियो देख लेते हैं, बातें उसके बाद में कर लेंगे। लेट्स स्टार्ट। We are forgotten, neglect, ignore it, isolated. Okay. The Northeast is one of the most beautiful and mysterious part of India. No doubt. But the least explored and understood. Very few people knows about this region. Northeast is still unknown, not only to the world but even to many of my fellow Indian. Today we dig and find the reasons why the world and the rest of India doesn't know about Northeast India. Reason number 1. Negligence from the central government. The story of Northeast is a story of neglect by the central government. The central government have shown less interest in developing this region, even though it has a very huge potential. There is a report claiming that the central government has for a long time kept the northeastern region alienated from the rest of the world for fear of influence from the Southeast Asian countries and China. It is time that the central government pays as much attention to the northeast region as it pays to the other states like Rajasthan, Punjab or Tamil Nadu, which are located on the fringes. Reason number 2. Wrong image projected by the media. ये सबसे बड़ा Media point है। has been very biased towards Northeast India. Media. The news that trickles out of the media is mostly bad, and we only hear about kidnapping, ambushes, insurgencies and other such events. What remains hidden is the beautiful land with beautiful people who are completely innocent, peace-loving, artistic and eager to be heard as Indian. I believe media has a very important role to play in spreading awareness and positive vibes about Northeast India. Reason number 3. Geographical isolation. If you look at a map, the 8 states of Northeast India is connected to the mainstream India through a thin Siliguri corridor, which is just a 22-kilometer stretch of land, which is also popularly known as the chicken neck of India. Thus, Northeast India has only 2% of link with the rest of India, and the 98% of the border is attached with the foreign countries. This leads to a very less cultural and economic exchanges between the Northeast and the rest of India. Therefore, more opportunities should be created for cultural and economic exchanges between the Northeast and the rest of India. Reason number 4. Non-inclusion of the Northeast in the Indian history. One important reason why the rest of India doesn't know about Northeast is that they were never taught about the history of Northeast India. Fact be told, the longest ruling dynasty in India is the Ahom dynasty from Northeast, and the Northeast is also the only region in India
where the Second World War was fought, where many Indian soldiers laid down their lives fighting the war on the side of the Indian National Army led by Netaji Subhash Chandra Bose. The INA Memorial at Moirang in Manipur, the Imphal World War II Cemetery, the Kohima World War II Cemetery are the poignant reminders to every Indian that the history of Northeast is as important as the history of any parts of India. It is also said to point out that the Indian national anthem doesn't have any reference to Northeast. I wonder if Northeast was never included even in the geography or GK book of a high school student in the other parts of India. The most disheartening moment is when an Indian fellow asks his own Northeast Indian brother, यार नागालैंड कहाँ पे पड़ता है? चाइना में है और क्या? The northeastern part of India may not be as significant as the other parts of India, but the world deserves to know that Arunachal, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura are Indian states and they are not in China or Chinese. When the northeastern Indians are highly educated and knowledgeable about Indian history and politics, the Indian states, Bollywoods and crickets, it is unfair that the rest of India doesn't know about the history and the culture of the northeastern region. The fact is that northeastern people take great pride in being a part of India. Most of them speak Hindi. They want people from all over the world and India to come and visit them. Let's spread awareness about Northeast India with love from Northeast Horizon. What is the national animal of India? तो फ्रेंड्स, ये था वीडियो। बहुत ही इमोशनल करने वाला वीडियो था और जैसे मैंने देखना स्टार्ट किया, मैं भाई की बातों को इतने ध्यान से देख रहा था और सुन रहा था, लास्ट में मैं इमोशनल हो गया। मैं बातों को स्टार्ट करना चाहूँगा भाई के बातों से स्टार्ट करते, बाद में मैं भी अपने तरफ से कुछ बात करूँगा, पर पहले उनसे स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते सेंट्रल गवर्नमेंट के रोल की और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितना नेगलेक्ट किया उन चीज़ों की। ये बात सही है कि 2014 से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का रुख नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखने का बहुत अलग था और ये मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि 2014 से पहले नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो मुझे महसूस होता था और अब जो मुझे महसूस होता है उसमें बहुत फ़र्क है। 2014 के बाद बहुत सारे पॉजिटिव प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, बहुत कुछ पॉजिटिव बातें हो रही है नॉर्थ ईस्ट के बारे में और ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात करते हैं कि इससे रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट नेगलेक्ट तब कर सकता है अगर यहाँ पे सबसे बड़ा रोल जो हम देखते हैं इस चीज़ में मेरी नज़र से वो है स्टेट गवर्नमेंट का। नॉर्थ ईस्ट में कोई भी यूटी नहीं है, यूनियन टेरिटरी कोई भी नहीं है, सब फुल स्टेट है। तो स्टेट के पास भी बहुत राइट्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि स्टेट के पास राइट्स नहीं होते। स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरफ से भी बहुत कुछ कर सकती है। यहाँ पे सबसे बड़ा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बात आती है, फंड्स की बात आती है, तो उसके लिए जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है जैसे साउथ इंडियन स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट करते हैं और जिस तरीके से अपना उनकी साइड है जिस तरीके से रखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को उनको वो करना पड़ता है क्योंकि वो सब लोग एक साथ आके अपने पॉलिटिकल पार्टियों को पीछे छोड़ के आके बैठते हैं। तो ये वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। दूसरे नंबर पे बात करेंगे हिस्ट्री की। हिस्ट्री ये बात मैं खुद मानता हूँ और मैं क्या यहाँ पे इंडिया का हर वो रहने वाला इंसान है इन चीज़ों को मानेगा। जितना हिस्सा इंडियन हिस्ट्री में एक परिवार के बारे में पढ़ाया जाता है उतना बाकी सब मिला के नहीं पढ़ाया जाता, ये सही है। इंडियन इंडिपेंडेंस में जितना योगदान सब लोगों का रहा है, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो या फिर चंद्रशेखर आज़ाद हो, भगत सिंह हो, यहाँ तक आप कह सकते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को कितना पढ़ाया जाता है,
या फिर जितना World War II के बारे में भाई बता रहे थे, नॉर्थ ईस्ट में वॉर्स हुई, उनके बारे में पढ़ाया जाता है पर उतना नहीं पढ़ाया जाता। नॉर्थ ईस्ट में जितनी वॉर्स हुई है उनके बारे में पढ़ाया जाता है, नहीं पढ़ाया जाता ऐसा नहीं है, पढ़ाया जाता है पर उतना नहीं पढ़ाया जाता। या फिर साउथ इंडियन स्टेट्स हो या फिर महाराष्ट्र में जहाँ का रहने वाला हो खुद, वहाँ का कितना पढ़ाया जाता है, ऐसा नहीं है। ये बातें सब लोगों के दिमाग में आती है कि हिस्ट्री को एकदम एक तरफ करके बनाया गया है। और भी इस पे बहुत सारी बातें कर सकता हूँ पर मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। आप खुद समझ जाइए इन चीज़ों को कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। दूसरे नंबर बात करेंगे तीसरे मीडिया की। हम जिन मीडिया को मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, एक्चुअली उनको मेन स्ट्रीम मीडिया कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, ये बहुत बड़ा सोचने का विषय है और सर्च का टॉपिक है। क्योंकि हम हिंदी मीडिया को मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं और हिंदी मीडिया जो है वो उन्हीं एरियाज़ को ज़्यादा कवर करती है जहाँ पे हिंदी स्पीकिंग ज़्यादा लोग रहते हैं। मैं महाराष्ट्र का एग्जांपल देता हूँ। महाराष्ट्र इंडिया का सबसे रिच स्टेट है और मुंबई के बारे में तो थोड़ी बहुत खबरें आती है क्योंकि मुंबई के बिना तो हो नहीं सकता। पर मुंबई छोड़ के महाराष्ट्र की कितने सिटीज़ की और कितनी खबरें हिंदी मीडिया में आती है। मैं बहुत ज़्यादा न्यूज़ देखता हूँ, इसलिए मैं न्यूज़ ज़्यादा फॉलो करता हूँ, इसलिए मुझे पता है। दिन में एक खबर महाराष्ट्र की आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, पर आ जाती होगी एक दो, पर इससे ज़्यादा नहीं। पर यूपी बिहार में कोई गटर में गिर जाए, सॉरी मैं बोल रहा हूँ, थोड़ी सी हार्ड लैंग्वेज है, पर वो ब्रेकिंग न्यूज़ होती है हिंदी मीडिया पे। जैसे भाई ने कहा कि हिंदी मीडिया का रोल या फिर जो भी मेन स्ट्रीम मीडिया का रोल है बहुत बड़ा है, क्योंकि पर किडनैपिंग, इंसर्जेंसी, इन चीज़ों की जो न्यूज़ दिखाती है हिंदी मीडिया वो बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाती है। उनको मसाला लगाने की बहुत बड़ी आदत होती है। खबर इतनी होती है पर उनको इतना करके दिखाने की आदत होती है क्योंकि उनको टीआरपी बढ़ानी होती है। पर वो टीआरपी के जो उनका धंधा है उसकी वजह से वो उनको ये बात का कोई लेना देना नहीं है कि बाकी सेक्टर पे उसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है। अभी उनके इन झूठी खबरों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि अभी सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया के इस दौर में मीडिया कुछ भी दिखाए पर सोशल मीडिया पे सच्ची खबरें आ ही जाती है और वो वायरल हो जाती है। अगर कोई भी न्यूज़ चैनल गलत खबर दिखाता है तो सोशल मीडिया उनको एक्सपोज करने में एक सेकंड भी नहीं लगाता। तीसरी बात करेंगे टूरिज़्म। टूरिज़्म सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे दो एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एक है सिक्किम, दूसरा है गोवा। दोनों सेम साइज़ के स्टेट है लगभग, पर आप इन दोनों का जो रेवेन्यू देखेंगे वो आप गूगल कर सकते हैं। मैं इस चीज़ों पे ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, पर आप खुद गूगल करके इन चीज़ों को देख सकते हैं। और दोनों का जो टूरिज़्म का सिस्टम है, उन्होंने जिस तरीके से इन चीज़ों को मैनेज किया है वो भी आप देख सकते हैं। और आप चाहे तो नॉर्थ ईस्ट के लोग तो सिक्किम को विज़िट करते होंगे, गोवा को तो सभी लोग विज़िट करते हैं, तो आप उनका ज़रा सिस्टम देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, ये पूरा रोल वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट का है। आप कहेंगे कि ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने करके दिया होगा, तो ऐसा नहीं है। ये पूरा जो वहाँ का पर्यटन हो या फिर वहाँ का जितना भी बाहर से लोग घूमने आते हैं वो पूरा मैनेज वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट करती है। तो यहाँ पे मैं इसलिए बोल रहा था कि स्टेट गवर्नमेंट का रोल, जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है उनका भी बहुत अच्छा। आप मेघालय को लीजिए, आप नागालैंड को, मणिपुर को लीजिए, मिज़ोरम को लीजिए, इतने ब्यूटीफुल स्टेट है। अरुणाचल प्रदेश को ले लीजिए, असम, सिक्किम, आपको इतने ब्यूटीफुल स्टेट तो यूरोप में जितना ब्यूटी है हमारे नॉर्थ ईस्ट में उतना तो यूरोप में नहीं मिलेगा। मैं हज़ार बार बोलता हूँ अपने वीडियोज़ में कि आप नॉर्थ ईस्ट को एक बार ज़रूर विज़िट कीजिए। और मैं पीछे एक वीडियो पे रिएक्शन दे रहा था, तब मैंने नॉर्थ ईस्ट में जो मेगा प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं या फिर जो अप्रूवल हुए हैं उनको उन वीडियो पे रिएक्शन दिया था उस वीडियो पे। तो अभी 2014 के बाद बहुत सारे मेगा प्रोजेक्ट्स सेंट्रल गवर्नमेंट भी बनाने वाली है। मुझे इसमें सबको तो नहीं गिनाऊंगा मैं, पर रेलवेज़ बहुत इम्पोर्टेंट है टूरिज़्म के लिए भी, और जो लोकल लोग हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए। और जो फॉरेन से भी लोग आते हैं, पहले फॉरेन से लोग नॉर्थ ईस्ट को नहीं आ पाते थे पर आप आते हैं, ये भी हमारे टूरिज़्म के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और दूसरी बात करूँगा कि एयरपोर्ट्स, रेलवेज़ और रोड कनेक्टिविटी ये बहुत इम्पोर्टेंट है टूरिज़्म के लिए। और तीसरा जो सबसे बड़ा मुझे अच्छा लगता है कि जो एशियन कंट्रीज़ है
उनको जो कनेक्ट करने वाली सेंट्रल गवर्नमेंट का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, उससे पूरी कह सकते हैं कि तस्वीर बदल सकती है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की। और सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी इन चीज़ों को कंप्लीट कर दे, क्योंकि जब पूरा एक ट्रेड रूट ही नॉर्थ ईस्ट इंडिया से जाएगा, उसके बाद वहाँ पे टूरिज़्म इंडस्ट्री और सबसे जो बड़ा है इंडस्ट्री और टूरिज़्म है। मैं इंडस्ट्री को इतना बड़ा नहीं मानता, क्योंकि टूरिज़्म सेक्टर से ज़्यादा पोल्यूशन नहीं फैलता, और ये हमारे लिए, इंडिया के लिए और इंडियन पूरे लोगों के लिए एक बहुत ही लक की बात है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया इतना ब्यूटीफुल है और एक हेरिटेज है हमारे लिए। और वहाँ के ट्राइब्स हो, वो हमारा नसीब है कि वो हमारे लोग हैं, अपने लोग हैं, और उनको जितना प्रोटेक्ट किया जा सकता है उनको प्रोटेक्ट करके डेवलपमेंट करना चाहिए, उनको डिस्ट्रॉय करके डेवलपमेंट नहीं करना चाहिए। जैसे नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बांग्लादेशी, और बांग्लादेशी जो घुसते हैं नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ से आप त्रिपुरा की बात लीजिए, वहाँ के पूरा पॉपुलेशन चेंज हो चुका है। जो लोकल लोग हैं और बांग्लादेश से आके घुसे हुए लोग हैं, अब 40-60 कह सकते हैं, 60% बांग्लादेशी है और 40% खुद वहाँ के लोकल लोग हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि अपना वोट बैंक छोड़ के इन चीज़ों के ऊपर बहुत जल्दी ध्यान दे, नहीं तो बहुत इसके जो परिणाम है बहुत डेंजरस हो सकते हैं। और टूरिज़्म सेक्टर के हम इन बातें पे आ गए, तो टूरिज़्म सेक्टर सबसे बड़ा जॉब आता है, बिज़नेस आता है, और जो सबसे बड़ा ये टॉपिक है इस वीडियो का कि क्या नेगलेक्ट किया गया, या फिर कहा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट को वो लोग अभी तक जानते क्यों नहीं है। तो टूरिज़्म से, जैसे गोवा को पूरे दुनिया में कौन नहीं जानता है, सिक्किम को कौन नहीं जानता है, वैसे केरला को कौन नहीं जानता है, राजस्थान को कौन नहीं जानता है। टूरिज़्म की वजह से सब लोग, मैंने जितने स्टेट के नाम लिए उनको जानते हैं। तो जैसे टूरिज़्म बढ़ेगा तो पूरी दुनिया में नॉर्थ ईस्ट का नाम होगा। और मैं आपको एक बात लिख के दे सकता हूँ कि जब भी नॉर्थ ईस्ट का टूरिज़्म पूरा बूस्ट होगा और नॉर्थ ईस्ट में इंडस्ट्री पूरा बूस्ट होगा, मैं इंडस्ट्री के ज़्यादा इसलिए नहीं बोलता क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल है नॉर्थ ईस्ट, और इंडस्ट्री जब भी आती है तो जो नेचुरल रिसोर्सेस है उनको डिस्ट्रॉय करने का ही ज़्यादा काम करती है। जॉब तो मिलते हैं पर जो हमारा ब्यूटी है वो ख़राब हो जाता है, हमारा जो नेचुरल ब्यूटी है वो बहुत ख़राब हो जाता है। पर टूरिज़्म से सब कुछ हम प्रोटेक्ट भी कर पाएंगे। इंडस्ट्री भी वो आनी चाहिए, जैसे केमिकल इंडस्ट्री हो, उनको साइडलाइन करके जो अदर इंडस्ट्री है जो वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेस है उनको डिस्ट्रॉय ना करे, ऐसे इंडस्ट्री को ही वहाँ पे लेके जाना चाहिए। पूरा मैं बहुत पॉजिटिव हूँ इन चीज़ों के लिए, तो हमेशा पॉजिटिव ही रहना चाहिए, नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ लास्ट में जाते जाते, जैसे नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ बहुत कुछ जगहों पे गलत हुआ, पर सभी लोग उस तरीके के नहीं हैं। मैं आपको कसम खा के भी बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं मेरे देश से बहुत प्यार करता हूँ, मैं नॉर्थ ईस्ट के लोगों से बहुत प्यार करता हूँ, मैं इस इंडिया से बहुत प्यार करता हूँ। इसलिए मैं कसम खा के आपको बोलता हूँ कि आप चाहे तो कोई भी नॉर्थ ईस्ट के ऊपर जो वीडियोस है उसके कमेंट्स पढ़े, जो मेनलैंड लोगों के कमेंट्स होते हैं। आप एक इंसान की वजह से पूरे लोगों को गलत नहीं कह सकते, इसलिए वो जो लोग हैं जिनको पागल कुत्ते ने काटा है, या कह सकते हैं कि वो जानबूझ के गंदगी फैलाना चाहते हैं, उनकी बातों पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। वो अगर चाइनीज़ कहते हैं तो आप उन्हें पाकिस्तानी कहिए, और हमें किसी से भी हमारा नेशनल सर्टिफिकेट है, हम किस स्टेट के या फिर किस कंट्री के रहने वाले, इसका सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। इस देश के जो मूल निवासी वो ट्राइब ही है, और ये पूरा दुनिया जानता है कि ट्राइब ही लोकल मेन लोग हैं। तो इससे ज़्यादा मैं और कुछ बात नहीं कर सकता, तो इसलिए किसी से हमें सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई देता है तो हम भी उसे सर्टिफिकेट बाय हैंड दे ही देते हैं। तो वो कुछ कहते हैं तो हमें नेशनलिटी उनको कहाँ की देनी है, तो मैंने बता दिया, आप उन्हें पाकिस्तानी बना दीजिए, तो वो हमको चाइनीज़ बनाते हैं, तो कोई बात नहीं है, ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो पॉजिटिव रहिए। तो ये था वीडियो फ्रेंड्स, इससे ज़्यादा भी बहुत कुछ बोल सकते हैं पर अगले वीडियो में बोलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो वीडियो की साइज़ है उससे ज़्यादा साइज़ तो हमने बातें कर ली है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके उतना शेयर कीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे भी फॉलो करना ना भूलिए।